In our today's lecture, we are going to proceed towards second lesson, that is on saying please. Before we start the lesson, let us see about the writer. The writer of this lesson on saying please is Alfred George Gardiner. His time span is 1865 to 1946. He was born in Chelmsford in Essex in 1865, and he started his career in literacy as a journalist. When he was 37 years old, he was appointed the editor of the Daily News, London, and under his pen name, Alpha of the Plough, he contributed with his writings to the Daily News. His essays are uniformly elegant, graceful, and at many occasions they are humorous also. His best creations are The Pillars of Society, Pebbles on the Shore, Many Furrows, and Leaves in the Wind are some of his best known writings. In this lesson on saying please, the writer points out about the good manners in a civic society, and he wants to convey the message to the readers that though it is not illegal, the law, the court cannot sue you for this, cannot punish you for this if you are not not showing courtesy to the people around you. But ultimately, he says that it is necessary part of our behavior and it makes our life sweeter than ever it was. So let us start the lesson on saying please. You can see in your lesson, please is written in double inverted comma. It means it is the statement, or it should be the statement. The lesson begins with an incident. The young lift man in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. It was a question of please. The complainant entering the lift said top. The liftman demanded top please. And this occasion being refused, he not only declined to comply with the instructions but hurled the passenger out of the lift. जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो लेसन है स्टार्ट होता है एक लोकेलिटी से जहां पर कि एक ऑफिस में जो लिफ्टमैन है, तो पैसेंजर कोई आता है लिफ्ट में चढ़ने के लिए, तो लिफ्ट में एंटर होकर के बोलता है टॉप, और लिफ्टमैन जो है लिफ्ट को ऊपर ले जाने वाला और नीचे ले आने वाला, वो डिमांड करता है कि टॉप नहीं, टॉप प्लीज बोलिए। जब उस पैसेंजर ने ऐसा करने से मना कर दिया तो लिफ्टमैन ने क्या किया कि जबरदस्ती उसको लिफ्ट से बाहर निकाल दिया। दूसरे दिन उसको फाइन किया गया। उसको मतलब यहाँ पर लिफ्टमैन को। तो राइटर कहता है कि दिस वाज ऑफ कोर्स वाज कैरिंग अ कमेंट ऑन द मैनर टू फार।
Discourtesy is not a legal offense and it does not excuse assault and battery. राइटर कहता है कि वास्तव में ये डिस्कर्टसी है वो कोई लीगल ऑफेंस नहीं है, कोई कानूनी अपराध तो नहीं है। और अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है तो उसके लिए आप वायलेंट भी नहीं हो सकते। कानून आपको वायलेंट होने के लिए परमिशन नहीं देता है। If a burglar breaks into my house and I knock him down, the law will acquit me. And if I have physically assaulted, it will permit me to retaliate with reasonable violence. आके राइटर एग्जाम्पल देता है, कहता है कि सपोज कोई बर्गलर मतलब होता है कि चोरी से घर में घुस जाने वाला मेरे घर में आता है और मैं उसके ऊपर अटैक कर देता हूँ तो लाभ मुझे छोड़ देगा, यानी कानून मेरा साथ देगा, मुझे निरपराधी मानेगा। और अगर फिजिकली असॉल्ट हुआ हूं मैं तो कानून मुझे अनुमति देगा कि मैं उसका विरोध करूं, मैं भी वापस आक्रमण प्रत्युत्तर दे सकूं आक्रमण करते हुए। It does because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law. और लेखक कहता है कि आई विल बी अलाउड टू रिटेलिएट विद दैट बर्गलर बिकॉज बर्गलर ने मुझे हर्ट किया हुआ है फिजिकली और इलीगल काम उसने किया है। बट नो लीगल सिस्टम could attempt to legislate against bad manners or could sanction the use of violence against something which it does not himself recognize as a legally punishable offense. लेकिन कोई भी लेजिस्लेट नियम कानून बैड मैनर के अगेंस्ट वायलेंट होने के लिए हमको परमिशन नहीं दे सकता है। जिसको कि यह इलीगल नहीं मानता है, तो इनडायरेक्टली राइटर के कहने का मतलब है कि अगर हम किसी के प्रति कर्टसी शो नहीं करते हैं, पोलाइट वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, तो ये ऑफेंस नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम किसी के प्रति कर्टसी शो करें, ये एक सोशल मैनर है, एक बिहेवियरल मैनर है जो कि हमें शो करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा किसी ने शो नहीं किया तो हमको कानून इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाए या कुछ हम उसको उसके साथ गलत तरीके से पेश आए। In our sympathy with the lift man, we must admit that the law is reasonable. और हमारी सिंपथी जो होगी वो लिफ्ट मैन के साथ ही होगी अगर हम मॉरल वे पर देखें तो। और हमको ये भी स्वीकार करना होगा कि ये जो लॉ है वो रिजनेबल है। क्यों? क्योंकि आगे बताते हैं कि इट वुड नेवर डू इफ यू वर एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स ईयर because we did not like their behavior or the tone of their voices or the scowl of their faces. Our fist would never be idle and the gutters of the city would run with the blood all day. ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा ना कि हमें किसी का बिहेवियर पसंद नहीं आया, किसी का टोन पसंद नहीं आया तो हम बिल्कुल बॉक्सिंग करें, कान के नीचे से कनपट्टी पर बॉक्सिंग मारे। अगर ऐसा होगा तो तब तो हम हमेशा मुट्ठी बांध के घूमते रहेंगे। हमारा जो फिस्ट है वो कभी आइडल नहीं होगा। आइडल से मतलब यहाँ पर स्थिर रहना है।
है ना, आल हमेशा मुट्ठी बांध के ढूंढते रहेंगे और हमेशा रोज खून खराबा होते रहेगा। यहाँ पर जो राइटर कहता है कि इवन द सिटी रन विद द ब्लड, मीन्स हर जगह खून खराबा होगा, क्योंकि प्राय ऐसा होता रहेगा कि लोग कर्टसी के वर्ड यूज नहीं करेंगे, सभ्य शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए कानून इस तरह के व्यवहार की इजाज़त कभी नहीं देगा, ये भी ठीक है। I may be as uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. I may be haughty or boorish, and there is no plenty to pay except the penalty of being written down an ill mannered fellow. ये देखिए, हॉटी, हॉटी का मतलब क्या होता है? हैविंग अ हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ एंड ऑफन अ लो ओपिनियन ऑफ अदर्स, मतलब अपने बारे में बहुत अच्छी राय रखना, दूसरे के बारे में खराब राय रखना। तो हम निश्चित रूप से अपने व्यवहार को तो बहुत अच्छा बोलेंगे, दूसरे के व्यवहार को अच्छा नहीं करेंगे। तो ये जो है ना, ऐसे जो सोसाइटी जो होगी हमारी, वो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड हो जाएगी। आई मे प्लीज एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट, मतलब जिस चीज़ से मैं खुश हूँ वो कानून मुझे उसका प्रोटेक्शन भी करे, और अगर मैं वायलेंट हो जाऊँ उसके लिए तो भी कानून मेरी रक्षा करे। तो क्या हो जाएगा, लेखक कहता है कि आई मे बी हॉटी, तब तो ये होगा ना कि मैं अपने को उच्च समझूंगा और सामने वाले को निम्न समझूंगा, या बोरिश, या उसको रूड समझूंगा, अपने को पोलाइट और हम्बल समझूंगा। तो ये ठीक नहीं है। आगे है, the law does not compel me to say please or to attune my voice to other people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. राइटर आगे कहता है कि लॉ मुझे कंपेल नहीं कर सकता, प्रेशर नहीं दे सकता कि मैं अपने स्टेटमेंट में, बोल चाल में प्लीज़ का यूज़ करूँ ही, या अपने वॉइस को दूसरे की सेंसिबिलिटी के हिसाब से ट्यून करूँ। है ना, जैसे कि मैं अपने मुस्टैच को टाइट न करूँ वैक्सिंग लगा के, है ना, या हेयर डाई न करूँ अपना, ठीक, या रिंगलेट्स न पहनूँ। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज the lacration of our feeling. In the case of compensation, there is no allowance for moral and intellectual damage in this matter. Lacration, a cut या टीयर, आंसू। तो इस तरह का जो बिहेवियर है वो कभी लैक्रेशन, वुंड्स या टीयर हमारे फीलिंग का रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, या उसका कोई कंपेंसेशन लॉस हमको नहीं मिलेगा। अगर आ, इस तरह से बिना कर्टसी के वर्ड हमारे लिए यूज़ किए गए हैं तो उसका कोई अलाउंस मिलने वाला हमारा नहीं है, क्योंकि ये बेस्ड ऑन किस पर है, ये बेस्ड है मॉरलिटी पर है। दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेज आर नेग्लिजिबल। राइटर आगे कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि कानून हमें प्रोटेक्ट नहीं करता है तो डैमेज है वो उसको निगलेक्ट कर देना चाहिए। It is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins, for which he could have got a legal redress.
राइटर आगे कहता है कि शायद प्लीज न कहने की वजह से उस वो लिफ्टमैन हर्ट हो गया था। अपनी जो उसका अपना सोशल स्टैंडिंग है, लेवल है, उसके हिसाब से उसको अपना इंसल्ट लगा, अपमान लगा। और शायद अगर उसके शिन पर यानी जो पैर का निचला भाग है उस पर अगर उसको किक लगता, उतना बुरा नहीं लगता जितना कि इस पैसेंजर के प्लीज ना कहने पर लगा, जिससे कि वो ना अपना, अगर उसको मान लीजिए पैर पे लगता तो उसको तो लीगल रेडेस मिलता, हर्जाना मिलता। लेकिन इस तरह का जो शब्द यूज हुआ, उसका कोई हर्जाना कहीं मिल नहीं सकता था, उसका कोई क्लेम नहीं कर सकता था। तो इसलिए उस लिफ्टमैन का व्यवहार ऐसा हुआ। The pain of a kick on the shin soon passes away, but the pain of a wound of our self-respect or our vanity may poison a whole day. अब देखिए, जो हर्ट करने वाली बात लिफ्टमैन को हुई, उतना हर्ट वो नहीं होता अगर उसको पैर पे किक भी लग जाता तो। शिन इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी below our knee. राइटर कहता है कि अगर उसके पैर पे किक लगता तो वो जल्दी समाप्त हो जाता, धीरे धीरे जल्दी खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर पेन ऑफ अ वुंड टू आवर सेल्फ रिस्पेक्ट और आवर वैनिटी में पॉइजन द होल डे। लेकिन अगर हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर चोट लगती है, आत्मसम्मान पे चोट लगती है हमारे, या हमारे गर्व पर चोट लगता है, तो पूरा दिन खराब कर देता है। आई कैन इमेजिन दैट द लिफ्टमैन डिनाइड द relief of throwing the another of the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour, and visiting his wife in the evening as the only way of the restoring his equilibrium. राइटर कहता है कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि जो लिफ्टमैन जो आथर को थ्रो किया, तो उसने सिर्फ इसलिए ऐसा किया कि उसको जो है जो रिलीफ चाहिए था वो नहीं मिला, तो उस अपने मेंटल रिलीफ के लिए उसने क्या किया कि पैसेंजर को थ्रो आउट कर दिया, और जो कि उसके पास सिर्फ उस समय के इंसल्ट को ओवरकम करने का, उसको पैचअप करने का, मेकअप करने का जस्ट एक ही रास्ता था। एंड देन विजिटिंग द वाइफ, रिस्टोरिंग द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब होता है प्रॉपर बैलेंस। और जब वो शाम को या जब ही अपने काम से बाहर जाएगा, बाहर अपने घर पे जब वापस जाएगा, तो ही विल बी ऑन द इक्विलिब्रियम, मीन्स ही विल बी इन द राइट मेंटल पीस। For there are a few things more catching than bad temper and bad manners. राइटर कहता है क्योंकि there are so many there are not so many things, means there are a few things which catches the bad temper and the bad manners. Okay. When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the latter went out and bullied his man, Fag, whereupon Fag went out downstairs and kicked the peg boy. अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि एक ने दूसरे को बुलेट किया, तो उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए दूसरे को बुलेट किया, फिर उन्होंने और दूसरे को बुलेट किया।
यहाँ पर ये देखते हैं हम थोड़ा सा, ये जो कैरेक्टर्स के नेम है उसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं कि सर एंथनी एब्सोल्यूट और पेग बॉय। यहाँ पर ये है अम्यूजिंग इंसिडेंट इन डिस्क्राइब्ड इन द एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट ऑफ द राइवल्स 1975, a comedy of Sheridan. Sir Anthony is Captain Jack Absolute's father, and Fag is the son servant. यहाँ पर एक ड्रामा का इंसिडेंट बताया गया है कि जब सर एंथनी ने कैप्टन एब्सोल्यूट को बुलीट किया, उनको डराया धमकाया, तो एब्सोल्यूट ने क्या किया, उन्होंने अपने आदमी को डराया धमकाया, फैग को, और फैग ने क्या किया, फिर वो गया नीचे और पेग बॉय को उन्होंने किक मारा। तो एक दूसरे को अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ये लोग अपने से जो नीचे लोग थे उनको उन्होंने उनके साथ मिसट्रीट किया। Probably the man who sat top to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good morning to him because he himself had been henpecked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back. अब ये देखिए कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन ये है, राइटर कहता है कि शायद उस आदमी ने उस लिफ्टमैन से टॉप कहा इसलिए कि उसने भी शायद अपने उस एम्प्लॉयर को, उसका जो एम्प्लॉयर है उसने उसको गुड मॉर्निंग नहीं कहा हो। और ये भी है कि हो सकता है वह स्वयं हैंडपैक्ड, जो वर्ड जो हैंडपैक्ड आया यहाँ पर उसको देखते हैं हम लोग, हो सकता है वो भी हैंडपैक्ड हो अपनी वाइफ के द्वारा। और ये हैंडपैक्ड के बारे में जो मैंने कहा, हैंडपैक्ड होता है द पर्सन हु इज अंडर कंट्रोल हिज वाइफ, या दब्बू जिसको हम बोल सकते हैं। और या हो सकता है कि फिर वो उनको मतलब उस लेडी को हो सकता है कि ही हैड बीन इंसोलेंट बाय द कुक, इंसोलेंट, ही मस्ट हैव बीन ट्रीटेड रूडली। अब यहाँ से एक बार आप इसको फिर से देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि probably the man who sat top to the lift man was really only getting back on his employer who had not said good morning to him. जो पैसेंजर था लिफ्ट में एंट्री करने वाला, उसने सिर्फ टॉप बोला, तो राइटर इमेजिन करता है कि हो सकता है कि वो अपने एम्प्लॉयर का वह बदला ले रहा हो जिसने कि उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोला। और उसने गुड मॉर्निंग नहीं क्यों नहीं बोला, ही हिमसेल्फ had been henpecked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent. अब हो सकता है अगला अपनी वाइफ द्वारा हैंडपैक्ड हो और उसको, जिसको कि ये जो कुक है वो, और उनको हो सकता है कि वो हाउस मेड ने किसी चीज़ का जवाब दे दिया हो। तो इसमें राइटर के कहने का मतलब यह है कि हर आदमी एक दूसरे से अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते रहता है और उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो पोलाइट बिहेवियर है, जो मैनर्ड और कल्चर्ड जो बिहेवियर है वो स्पॉइल होता है। ओके, तो राइटर आगे कहता है कि वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विद आवर इल ह्यूमर्स, जो हम प्राय संसार में हम ना पूरी दुनिया को इन्फेक्ट करते हैं अपने इल ह्यूमर से।
bad manners probably do more to poison the stream of the general life than all the crimes in the calendar. जो साल भर में जो क्राइम्स होते हैं ना, उसकी अपेक्षा जो हमारे बैड मैनर्स हैं, वो जो सोसाइटी के हमारे मेन स्ट्रीम है, उसको ज़्यादा पॉइजन करते हैं. फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई from an otherwise good natured husband, there are hundreds who live a life of martyrdom under the shadow of a morose temper.